व्हाट्सएप में मैं टेक्स्ट टाइप करता हूँ हेलो भाई, ठीक है, हेलो लिखूंगा, भाई अपने आप आ जाएगा। सो हम थंबनेल बनाते हैं उसका, ठीक है। तो हमारे पास एक बंदा है, हमने थंबनेल बनाना था उसका, तो बेसिकली आई यूज डॉली टू मेक अ थंबनेल का फोटो, थंबनेल जो फोटो होती है, एंड दैट पर्सन सेड कि यार तूने बना लिया उसे, तू तो ऐसे में काम खा जाएगा। कॉपी राइटिंग, these all jobs will be killed, like no one would pay for it, right? See, you won't get a job in AI. Hey, what's up people, it's your boy Sanskar. In this video I talk to Paras Madan, or as you might know him, the AI kid. We talk about the real power of AI, how you can learn AI and start an AI based startup. We also talk about the scary thing that AI can do. So press subscribe, leave a comment, and let's begin. Do you feel that now we are actually seeing the true potential and scope of AI? Yes. In the upcoming, I should say 6 months or maybe an year or two, you will realize that how powerful an AI is. I'll tell you a story behind. Yesterday, I made an e-commerce website using ChatGPT. ChatGPT is the new AI released day before yesterday. And I made an e-commerce website and I posted it on Twitter. Guess what? CEO of Shopify, the billion-dollar company, commented hired on that post. Like that billion-dollar company. And I made an e-commerce website. You see the potential of AI. I'm not telling you कि यार उसने comment कर दिया. I'm telling you the e-commerce website that I made. I didn't write a single piece of line of that code. Like मैंने एक शब्द भी नहीं लिखा. But I made a e-commerce website जो कि चल रही है. I made it. I made a portfolio website for me. I didn't had a portfolio website. तो मैंने कहा यार क्यों ना यही से बना ले. So I typed website portfolio और मेरे को as a founder बताओ या फिर वो बताओ content creator, and the AI wrote it. Like I didn't even thought about it. So in the upcoming years, you will see a lot of startups growing in AI, but you will see a lot of job skilling and like content creator. मैं example ले सकता हूँ कि content creator की job आने वाले साल में content writing, copywriting. These all jobs will be killed. Like no one would pay for it, right? जब मैं free में कर सकता हूँ, मैं क्यों पैसा दूँ, right? So there are softwares it will create many opportunities. You have to be smart enough right now. So in the upcoming year, you will see the full potential. But yes, right now it's in the very nascent stage. It's like a baby plant is going up. Now it's a plant. It's not a seed anymore. It's a plant. But yes, it will become a tree in upcoming years. You mentioned about copywriting. So do you feel that copywriting can truly be replaced by AI? मतलब एक human touch, can AI bring that? कॉपीराइटर्स की ना जॉब रिप्लेस नहीं होगी, रिप्लेस नहीं, उनको ना अपग्रेड होना पड़ेगा कॉपीराइटर्स को. द जॉब कैन नॉट बी किल्ड. व्हाट आई मीन बाय दैट इज, मेरा कहने का मतलब क्या है उससे, कि होगा क्या कि मान लो copy.ai एक सॉफ्टवेयर है, लेट्स टॉक अबाउट दैट, ठीक है. यू कैन टेल अबाउट योर सॉफ्टवेयर. जैसे मैं अपनी स्टार्टअप की बात करता हूँ, जैसे मान लो मेरे को कुछ नया खोलना है, एग्जांपल मैं अपनी बात नहीं करता, कुछ नया खोलना है, लाइक आई हैव अ शॉप, मेरी यहाँ पे शॉप है, दुकान है मेरी यहाँ पे, उसकी बैग की दुकान है, ठीक है, मान लेते हैं, चलो स्कूल बैग की दुकान है. तो अब मेरे को उसके लिए कॉपी लिखना है, मेरे को बोर्ड छपवाना है, ठीक है. मेरे को एक कोड की सी लाइन चाहिए कि भैया क्या लिखूं मैं, इंग्लिश में छपेगा बोर्ड, हिंदी में नहीं छपेगा. तो आई गो देयर एंड आई टेल द सॉफ्टवेयर कि भैया मेरी बैग की दुकान है, ये मैं बेचता हूँ, आप लिख दो लाइन. तो लिख दी. अब एआई जो कॉपीराइटर है, अभी क्या ह्यूमन क्रिएटिविटी से वो आइडियाज आ रहे हैं उसको कि भैया, अब कॉपीराइटर का काम है क्या बदल जाएगा कि भैया कॉपीराइटर को मैं हायर करूंगा कि तू कॉपीराइटर जाके उस सॉफ्टवेयर को यूज करेगा, वहां से आइडियाज लेगा, उन आइडियाज में चेंज करके देगा, कस्टमाइज करके देगा. अब वो एआई जो है वो ट्रेन हुआ है अमेरिका की उसमें कहीं पे, इंडियन कॉन्टेक्स्ट नहीं है उसको, ठीक है. बट वो कॉपीराइटर उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए बदलेगा. सो दिस वुड बी द रोल, ठीक है. अभी उसका काम है कि खुद सोचे. अब उसका काम सोचने का नहीं है, अब उसका काम है कॉन्टेक्स्ट चेंज करके दे मुझे. सिमिलर इज फॉर आर्टिस्ट एज वेल. लाइक डॉली आ गया है, ठीक है. जैसे आई रिसेंटली आई वाज मेकिंग अ यूट्यूब वीडियो, ठीक है, मतलब फॉर क्रक्स एज वेल. सो हम थंबनेल बनाते हैं उसका, ठीक है. तो हमारे पास एक बंदा है, हमने थंबनेल बनाना था उसका. तो बेसिकली आई यूज डॉली टू मेक अ थंबनेल का फोटो, थंबनेल जो फोटो होती है. एंड दैट पर्सन सेड कि यार तूने बना लिया उसे, तो ऐसे में काम खा जाएगा. दिस इज काइंड ऑफ थिंग. सो अब क्या होगा कि ग्राफिक डिजाइनर का काम क्या होगा कि तू वो प्रॉम्प्ट लिख कि जिससे नाउ द पर्सन, द क्रिएटिविटी ऑफ ग्राफिक डिजाइनर इज टू बी गुड एट इंग्लिश, राइट. एक्साइटिंग प्रॉम्प्ट टू द एआई कि गिव मी एन इमेज जो कि ऐसा सुंदर दिखता हो और हाथ हो और 3D हो और कैलिग्राफिक हो और ये हो और वो हो. दिस इज नाउ द वर्क ऑफ अ ग्राफिक डिजाइनर.
ग्राफिक डिजाइनर का काम अब ये नहीं है कि तू ग्राफिक डिजाइन कर, तू इलिस्ट्रेटर पे जाके बना, उसको बना, ठीक है, दैट गिव अ फाइनल टच। मान लो कि वहां से उसने इमेज ले ली, उसके ऊपर बॉर्डर करनी है, तो उसने बॉर्डर करने के लिए इलिस्ट्रेशन यूज कर लिया, बट टू मेक इट फ्रॉम स्क्रैच is not a thing for graphic design anymore. Maybe in future. Abhi to nahi, it's very nascent stage in Dolly and all these things. But yeah, you will see a lot of improvements. Like it will kill a lot of jobs as well. Those who don't upgrade will change their careers. That's for sure. Either upgrade your career or get wiped away. Interesting. This is my take. No, it is interesting. I agree with you. तो ब्रो कहाँ पे AI एग्जिस्ट करता है? लाइक फॉर लेमैन हमें नहीं पता लगता कि हाँ यहाँ पे AI है. आपने बोला स्पॉटिफाई, डॉली 2, तो ऐसा और कोई कॉमन प्लेस? Do you have a phone right now? या कौन सा ऐप है उसके अंदर? मतलब कौन से ऐप्स हैं? ले नेम टू और 3 मे बी. इंस्टाग्राम, ट्विटर. Okay. So all of them use AI. Every app in your phone right now, I can pick up my phone and every app in this phone uses AI. You name me the app and I can tell you कि इस ऐप में ऐसे यूज हो रहा है. Yeah. Let's take an example. ठीक है. Instagram पे तो it's very common. You see recommendations. So how is this recommended? ठीक है. First of all, it's a clear demonstration. Let's talk about Google Pay. हम सबके फोन में UPI is being used. Let's talk about Google Pay. Do you know that Google Pay का ट्रांजैक्शनल डेटा कहाँ यूज होता है? मतलब it's very rare. हम अब ये जो बड़ी कंपनीज हैं, हमारे ऐप्स में फोन है, it's very subtly used and smartly used. These all people behind the scenes are using it so smartly that people on the front side of it, consumers, don't understand that it is used. ठीक है. दिखाना नहीं है, दिखा दिया तो सारा गेम खत्म हो जाएगा ना. ठीक है, लोग समझने लग जाएंगे इस चीज को. सो द होल पॉइंट इज यूज इट इन अ वेरी सब्टल मैनर दैट द पीपल डोंट नो अबाउट इट, कि लोगों को समझ ही ना है कि यूज कैसे हो रहा है, बट इट्स बीइंग यूज्ड. आई कैन टेल दैट एवरी ऐप इन योर फोन राइट नाउ, यू नेम मी द ऐप, इवन कैंडी क्रश यूजेस एआई, राइट. मैं कैंडी क्रश का बताता हूँ कैसे यूज होता है. लाइक आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे यूज हो सकता है. मैं एग्जांपल लेता हूँ. मतलब आई वाज इवन एस्टोनिश्ड कि भैया कैसे यूज होता है. कैंडी क्रश मेरी आई विल टेल यू अ पर्सनल एग्जांपल. मेरी मॉम 3400 लेवल पे है, 34, एंड शी इज प्लेइंग दिस गेम फ्रॉम लास्ट 6 इयर्स. ठीक है भैया, 6 ईयर, मेरे मतलब बहुत साल हो गए, 6 साल. तो मैं बताऊँ कैसे होता है. हर दिन कैंडी क्रश की टीम क्या करती है, 25 या 50 न्यू लेवल, इसके बीच में एक नंबर है जो कि नए लेवल बनाती है. ठीक है. अब ये नए लेवल बनाने चाहिए. मान लो कि मेरी मम्मी तो 34 लेवल पे है. ऐसे भी लोग हैं जो 10,000 लेवल पे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो 40,000 लेवल पे हैं. मतलब जो बहुत ज्यादा खेल रहे हैं वो 40,000 लेवल पे हैं. कैंडी क्रश की टीम क्या करती है कि रोज 25 न्यू लेवल बनाती है, रोज. ठीक है. अब जो 25 न्यू लेवल बन रहे हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जानता हो ज्यादा हार्ड हो ना, वो ज्यादा आसान हो. ठीक है. और एंगेजिंग हो, कि सही होना चाहिए वो. सो इट्स वेरी हार्ड फॉर ह्यूमंस टू बी परफेक्ट ईच टाइम एंड गिव अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ हार्डनेस, एक्साइटेडनेस ईच टाइम. मतलब रोज किसी के लिए 25 न्यू लेवल डिजाइन करना इज वेरी हार्ड थिंग, राइट. सोच के देख कि यार मैं ऐसे बैठा हूं तो ऐसे करता हूं कि यार यहाँ पे कैंडल लगा देता हूं. इट्स वेरी हार्ड, राइट. और रोज 25 बार. ठीक है. इट्स वेरी हार्ड. नाउ व्हाट दे डिड, कैंडी क्रश क्या करा कि अपने सारे पुराने लेवल्स का डेटा जो उन्होंने बना दिया, इंसानों ने बना दिया, उसका डेटा एक मशीन लर्निंग टीम को दे दिया. एक टीम बिठाई, उसको दे दिया कि देखो अब दे यूज एआई टू क्रिएट न्यू लेवल्स, राइट. और वो जो एआई इतना परफेक्ट है, वो ऐसा लेवल बनाता है जो कि जिसकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो मीडियम है. आपको खेलने में मजा आएगा, हाँ जी आएगा. ठीक है. आपको अच्छा लगेगा खेल के, फील गुड होगा, हाँ जी होगा. सो इट्स नॉट डन बाय ह्यूमन. सो दे यूज एआई टू क्रिएट न्यू लेवल्स एंड टेस्ट इट, राइट. मतलब आई फाइंड इट वेरी माइंड बॉगलिंग कि यार गेम यूज कर रहे हैं. पबजी की बात कर ले. पबजी में आप क्या करो मैं बताता हूँ. पबजी में हार्ड लेवल ही लगा लो और ना अकेले खेलो बॉट्स के साथ. ठीक है. कहीं भी उतर जाओ, बॉट्स के साथ खेलो. आपने मान लो ना एक कॉम्पिटिटर को गोली मार दी, मान लो कि वो झाड़ियों के पीछे था बॉट, आपने उसको गोली मार दी. अगली बार आप गेम दोबारा खेल लो हार्ड लेवल पे. ठीक है. वो कॉम्पिटिटर वहां होगा ही नहीं, बिकॉज द गेम्स, एफपीवी गेम्स, जो फर्स्ट पर्सन शूटिंग वाले एफपीएस बोलते हैं ना, हाँ फर्स्ट पर्सन, द गेम्स आर बीइंग मेड स्मार्ट बिकॉज द सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंड्स कि जहां पे इसने पहले मार दिया, इसको पता है वहां मैं हूं, तो यहाँ पे रखना नहीं है इसको. दिस इज ऑल एआई. लाइक इट्स वेरी स्प्रेड. ठीक है. आपको यूज नहीं हो रहा, सबकॉन्शियस माइंड में आप यूज कर रहे हो रोज उसे.
ठीक है, आपके फोन में व्हाट्सएप है, अच्छा व्हाट्सएप में मैं टेक्स्ट टाइप करता हूँ हेलो भाई, ठीक है, हेलो लिखूंगा, भाई अपने आप आ जाएगा, ठीक है, ये कैसे हो रहा है, टेक्स्ट आपके पास आ कैसे रहा है वो चीज, मतलब आपको उसको कैसे पता कि आपको भाई लिखना आगे, मतलब आपने लिखा होगा पहले कभी, तो उसने समझ लिया कि अच्छा भाई Right. इसको भाई लिखना होता है आगे, हाउ इट इज डन, दिस इज रिकमेंडेशन, आप यूट्यूब पे जाओ, ठीक है, और एक बार टाइप कर दो कंटेंट, आगे आ जाएंगे 10 रिकमेंडेशन, कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट ये, कंटेंट वो, हाउ इट इज डन, दिस इज डन, राइट। ये जो फुल वर्ड कंप्लीशन हो रहा है या फिर कैसे हो रहा है, दिस इज ऑल एआई, दिस इज ऑल एआई। इट्स वेरी, मतलब आपको एक, जो मान लो कि आपका कोई व्यूअर होगा जो कि डीयू कॉलेज से है, किसको नहीं समझता कि ये क्या एआई है, सो आप यूज करते हो, आपको बस पता नहीं है कि वो एआई है, ठीक है, आपको बस पता नहीं है, आप यूज करते हो, आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम आपको दिखा रहा है, सो दिस इज हाउ एआई इज यूज्ड इन डेली लाइफ। हमारी रूट्स में है वो, हमारी रूट्स में है, यू डोंट वांट टू यूज इट, देयर इज नो ऑप्शन, राइट, ड्रॉप फोन्स नाउ, दिस इज हाउ इट्स यूज्ड। Awesome. So, bro, what was your first interaction or first project based on AI? How it went was, in my second, I just graduated this year, by the way, okay, 2022 graduate from engineering college. So to run abhi, when like in my second year of engineering college, I wanted to start a startup, ठीक है, एक AI startup। तो मेरे को लगा कि यार ये शुरू कर लेते हैं, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, उस स्टार्टअप को बनाने के लिए मेरे को लगा कि भाई इसके लिए तो AI की जरूरत है, अब ये होगा कैसे। Then I started exploring out things कि क्या कर सकते हैं। I didn't have enough money to hire an AI engineer, मतलब सेकंड ईयर में कहाँ ही पैसा होता है, ठीक है। सो इट्स लाइक आई स्टार्टेड लर्निंग ऑन यूट्यूब कि हाउ कैन आई लर्न एआई। उस समय एआई का बहुत बूम भी चल रहा था कि यार एवरीवन इज लर्निंग एआई, एवरीवन इज लर्निंग, सो इट्स दैट्स व्हाई आई ट्राइड learning AI. Then I took a course from Udemy, learning it. I have told कि like a lot of people ask me now तो कि यार क्या है, कैसा है, कौन सा कोर्स लिया था, so I'm telling you here as well, A to Z machine learning from Udemy, ये कोर्स था। I'm not promoting it, they don't pay me, I just because मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो मेरे को अच्छा लगा था, मैंने वही करा था शुरू में। Also a lot of YouTubers की जो मेरी वीडियो, कृष्ण नायक हैं, Campus X है, so they are all free YouTubers, so I started learning from them. Yes, बड़े मैंने क्यों सीखा, इसलिए सीखा क्योंकि मेरे स्टार्टअप को उसकी आवश्यकता थी, मेरे स्टार्टअप को उसकी जरूरत थी, और मेरे को कोई बंदा चाहिए था अपना स्टार्टअप खड़ा करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने सीखा, मतलब मेरे लिए ऐसा नहीं था कि मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा, मेरे लिए था कि मेरे को स्टार्टअप खड़ा करना है और एआई में ही खड़ा करना है, मेरी चुल थी, ठीक है, ऐसा बोलना चाहिए। इट वाज लाइक दिस ओनली, so that's the thing, that's why I started learning AI. My first project, now coming to the question कि first project कौन सा था, my first project was a startup itself. So it was not a project really, it was a startup. It was called Analyticware, though it failed, ठीक है, due to some reasons XYZ, ठीक है। So two people, both of them work at Microsoft right now. We were three people, they both of them work at Microsoft right now, but yeah, it failed due to some reasons. But we served with government of India, we made chatbots for them. So startup क्या था कि हम इंडिया की 22 रीजनल लैंग्वेजेस में चैटबॉट बनाते थे, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, जो भी आप बोल सकते हो, we made chatbots in that. So there's a hospital in Chandigarh, if people know, PGI Chandigarh, ठीक है, it's a very famous government hospital there. So we served that, and there was a project called आरोग्य प्रहरी, जो कि उस समय जैसे उसमें आरोग्य सेतु बहुत चल रहा था, कोविड का टाइम था ना, Right. So हाँ, तो गवर्नमेंट वाज लॉन्चिंग अनदर स्कीम कॉल्ड आरोग्य प्रहरी, एंड दैट्स व्हाई उस प्रोजेक्ट में ना उनको सरकार को एक चैटबॉट को इंटीग्रेट करना था, एंड दे सॉ अस कहीं से, तो दे आस्क्ड अस टू बिल्ड अ चैटबॉट। उसके बाद हमारे कॉलेज की वेबसाइट, थापर इंस्टीट्यूट जो है, हमारे कॉलेज का प्लेसमेंट वो था, एडमिशन सीजन था, तो दे नीडेड अ चैटबॉट फॉर दैट, ठीक है, प्लेसमेंट की क्वेरीज के लिए, पेरेंट्स के लिए, लाइक पेरेंट्स आते हैं ना, क्वेरीज, नए बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं, Right. so they wanted a chatbot for them, and we served 40,000 queries in a night for that chatbot, and we three people were the first ones to serve. Like हमारा कॉलेज 1956 में बना था, और तब से किसी ने कोशिश नहीं करी कि हमारी वेबसाइट पे कोई चैटबॉट लगा दे, बट वी वर द फर्स्ट वंस जिन्होंने उनकी वेबसाइट पे चैटबॉट, लाइक वी वर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, राइट, हम बस कोशिश कर रहे थे कि कुछ हो जाए जीवन में हमारा, मतलब हमें पता नहीं था कि क्या होता है, बट आई डिड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन दैट स्टार्टअप। वन सच मिस्टेक वाज, मेरे को पता था मेरे को चैटबॉट बनाना है, बट मेरे को ये नहीं पता था किसके लिए बनाना है। लाइक दिस वाज अ ह्यूज मिस्टेक दैट आई डिड दैट टाइम, लाइक दिस इज अ ब्लंडर मिस्टेक अगर आप स्टार्टअप के नजरिए से देखो, कि आपको पता नहीं है कि आपको किसको बेचना है, आपने बस बना दिया क्योंकि आपको आता है, ठीक है। सो दिस वाज अ ब्लंडर मिस्टेक दैट आई डिड, बट यस, दिस वाज माय फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट, एंड वहां से आई टुक हैकेथॉन्स में पार्ट ले लिया, फिर ऐसा ही होता है स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, वहां पार्ट ले लिया,
ये कर लिया, वो कर लिया, हाथ पैर, मतलब ऑब्वियसली हाथ पैर मारनी ही है, मतलब कहीं कहीं तो हाथ लग ही जाएगा. Then I started this page in last year. Like I started this page on my birthday 21st September को last year 21 में, and अभी तो 450-500 दिन हो गए हैं ये शुरू करे हुए. And this is what it is. अभी हम यहाँ बढ़ गए हैं, फिर यहाँ पे आ गए हैं. So now our current startup is also AI based. It's a recommendation system. Yes. अब तो I have a good hold over it कि यार कैसे होता है. I'm learning more over. It's not that कि मेरे को सब कुछ आता है or something. It's a very long, it's a very tiring process. I just learn the things that I want to learn. That's why when people ask me कि यार AI सीखना है, the first question I say them is क्यों सीखना है? Like what's the reason? See, you won't get a job. You won't get a job in AI. शुरू में आपको कोई जॉब नहीं देगा. अगर आप मान लो कि आप कहते हो कि भैया मेरे को AI सीखना है क्योंकि मेरे को जॉब चाहिए, नहीं देगा. फ्रेशर को कोई जॉब नहीं देता AI इंडस्ट्री में. They want some people from Stanford, ठीक है, या फिर आपने MS करी हो तब आपको देंगे जॉब, या फिर आपका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो कि आपने कोई स्टार्टअप खड़ा कर दिया, ठीक है, अकेले सिंगल हैंडेडली उसका सारा कोड AI कोड खुद लिख लिया. These people, like all these companies, there are a lot of companies, I won't name them, but they came to me for promotion, ठीक है. So they asked me कि हम क्या करेंगे, AI का कोर्स है, 1.5 लाख का कोर्स है, ठीक है, और हम आपको गारंटी जॉब लेंगे 5-6 लाख की, ठीक है. And they said this, तो it was like यार कर तो दो प्रमोशन, and they was giving me good money, right, पैसा बहुत से दे रहे थे, but I didn't accept it. मेरे को लगा यार जब फ्री में बंदा सीख सकता है, why do I tell people to buy a course? जब मेरे को सीख सकते, मैंने फ्री में सीखा है, I didn't pay any money to anyone, right? So this was it. एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बोली आपने कि जब आपने चैटबॉट्स बनाने स्टार्ट किए तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रोच किया, आपकी वेबसाइट, कॉलेज की वेबसाइट ने आपके उसके लिए काम किया. तो मेरे जो मेनली ऑडियंस है वो कॉलेज गोइंग फोक्स है, उनको बेसिकली ये होता है कि पैसा कहाँ से कमा लें हम. तो आपको ये क्या लगता है कि AI का इस समय क्या स्कोप है, और अगर कोई AI सीखता है तो बेसिकली क्या कर सकता है? So first of all, if you want to start an AI startup, ठीक है, there are two ways, ठीक है, या तो आप सीख लो, ठीक है, या तो उस चीज को सीख लो कि आपको, जैसे मैंने सीख लिया, मतलब it took me time 6 months or something to learn it, basics of it at least I should say. तो या तो आप सीख लो. अगर आपको नहीं सीखना, आपको कोई स्टार्टअप ही बिल्ड करना है, तो आप कोडिंग सीख लो. बस कोडिंग सीख लो, मतलब पाइथन सीख लो. आई वुड प्रेफर पाइथन बिकॉज आसान है, ठीक है. तो पाइथन सीख लीजिए आप, ठीक है, और उसके बाद ना आप ये सीख लो कि API को कैसे कॉल करते हैं. API होती है, जो कोडिंग के बच्चे उनको पता होगा, एक API चीज होती है, API कॉल करना आप सीख लो, ठीक है. उसके बाद आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करो. थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर मतलब ऐसी कंपनी जिन्होंने अपने सॉफ्टवेयर, AI सॉफ्टवेयर पहले बना दिए हैं, उसमें आपको कोई कोडिंग नहीं करनी है, बस आपको यूज करना है उसको, ठीक है. आप उनकी API यूज करके अपने आप कुछ कर सकते हो, ठीक है. एग्जाम्पल के लिए अपने लिए कोई साइड इनकम खड़ी कर सकते हो, या फिर कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है. पैसे कमाने का तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि पैसे कैसे कमाने, बट आई वुड टेल यू कि व्हाट यू कैन डू, लाइक व्हाट आई वुड हैव डन, कि मैं क्या कर रहा होता अगर मैं होता, ठीक है. दिस इज अ गुड टॉपिक, दिस इज अ गुड थिंग टू टॉपिक, कि मान लो मैंने बोल दिया पैसे कमाना, नहीं कम पाए तो फिर हो जाएगा. बिल्कुल. कैसे कर सकते हैं, ठीक है. यू कैन स्टार्ट अ ब्लॉग. You can start a blog in the sense you can start a blog and you can ask AI to do it. Like pick up a genre. Example के pick up a niche. जैसे मान लो कि आप फूड के लिए कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, हिस्ट्री से ब्लॉग्स ला रहे हो, या फिर आप ये देख रहे हो कि कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर कर रहे हो. एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी एंड सोशल मीडिया हैज अ वेरी गुड रिलेशन, ठीक है. सो यू कैन स्टार्ट अ ब्लॉग. एग्जाम्पल ऐसे कर सकते हो कि क्या कर सकते हो कि ह्यूमन साइकोलॉजी और सोशल मीडिया कैसे पैरेलली चलते हैं. कि अगर मैं कोई स्टोरी, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कोई स्टोरी डाल रहा हूँ, ठीक है, तो उस स्टोरी का एस्थेटिक कैसा होना चाहिए कि ज्यादा लोग उसको देखें तो क्लिक करें, ठीक है, कि कितनी शैडो होनी चाहिए. एग्जाम्पल के लिए इफ यू गो टू गूगल एंड टाइप कि व्हाट इज कॉग्निटिव बायस टेक्स्ट, ठीक है, तो आपको समझ आएगा, वहां पे ना इमेज आएगी, ऐसी कुछ इमेज है, आई विल शेयर विद यू, ठीक है, तो आप शेयर कर सकते हो. सो देयर इज अ पैटर्न जिसमें हमारा दिमाग सोचता है, ठीक है. So you can write a blog mixing social media and this is a blog. पढ़ेगा कौन इस blog को? सारे content creators. मैं पढ़ूंगा, ठीक है, because I would like to know more about it, ठीक है. And you can take help of AI in this. आप chat.openAI पे जाओ, अभी जो रिलीज हुआ 2 दिन पहले, और उसको ना ये सब लिख दो. तो that AI will give you ideas for it कि आप क्या लिख सकते हो, कैसे उस पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो, several articles पढ़ सकते हो, and start a blog for it. This is one thing that you can do. Start a blog and people would read it. Medium पे शुरू कर लो, and that would be an entirely AI generated blog. आप उसमें कुछ additions करोगे obviously,
but this is a blog, ठीक है? And if you have a good audience after some time, then you can monetize it as well. There are various ways to monetize a blog. Second is you can be a content creator on Instagram, ठीक है? Informational content बना सकते हो, फिर LinkedIn पे सबसे आसान LinkedIn है, सबसे आसान LinkedIn है क्योंकि अपनी शक्ल नहीं दिखानी होती ना. Like some people are very camera shy. They won't want to show your face, right? To their face. So you can just go to LinkedIn and choose a genre. जैसे कि आपने सोच लिया कि आप फैशन के ऊपर लिखोगे, ठीक है? So फैशन के ऊपर AI से बोलो कि तू आइडिया जनरेट कर, वहां पे लिखो 5 topics for 5 content ideas for fashion bloggers, and वहां पे आ जाएगा. And then ask AI to write a blog on the first topic, write a blog on second topic, ठीक है? And that they would write a post. उसके आप उसको ट्वीक करो, एक अच्छी सी फोटो लगाओ और डाल दो, ठीक है? और बट ये काम आपको रोज करना पड़ेगा. दिस इज नॉट अ वन डे थिंग. अगर आप सोचो कि एक दिन में आज मैं करूंगा तो कल पैसे आना शुरू होंगे, तो ऐसा नहीं होगा. इंस्टाग्राम की स्क्रिप्ट लिख सकते हो, यूट्यूब वीडियोस लिख सकते हो, यूट्यूब के थंबनेल्स बना सकते हो, एडिटिंग के लिए. एग्जांपल के लिए यू कैन स्टार्ट अप अ स्मॉल सा कंपनी नहीं बोलना चाहिए, प्रोजेक्ट वाइज, कि आप क्या करो, जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जैसे कि मैं हो गया, मेरे को अप्रोच कर लो, भाई को अप्रोच कर लो, ठीक है? एंड मेक यूट्यूब वीडियो का थंबनेल फॉर अस एंड पिचेस लाइक दिस. हाय, मेरा नाम दिस है, दिस इज अ पिच आई एम टेलिंग. अगर मैं ये करता तो मैं ऐसे पिच करता. हाय, मेरा नाम ये है एंड आई जस्ट केम अक्रॉस योर वीडियो. आई जस्ट वांट टू पिच यू माय प्रोजेक्ट व्हिच इज AI based thumbnails for content creators. I'm using Dolly to create images for YouTubers and content creators. Do you mind giving it a try? I am attaching a thumbnail for you from my latest art that I generated with AI. Would you mind giving it a try and using it in your next video? Thanks. If you want to talk, we can talk on this number. Have a good day. Bye. अगर मेरे को मैसेज आएगा, I would accept. Like, why would I not? There's no point. So I just give you an idea of a content creation का thing, right? And if you grow, बहुत बढ़िया. If you don't, you learn something, right? And बिल्कुल. I bet if you do it in a proper manner, you will definitely grow. Like, मेरे को लग रहा है मैं शुरू कर सकता हूँ. Oh, this is good. Right? So awesome. This is what you can do. There are ample number of ways. You can just explore the opportunities out there. Or all this by AI. You're not doing it. It's minimal effort. Spend 1 hour of your day each day and do something, and you will make great connections, right? You will meet awesome people out there. I am not an AI expert. मतलब मेरे को पता है हाँ भाई AI क्या होता है, कैसे काम करता है थोड़ा बहुत. मैंने एक मूवी देखी थी आई रोबोट. तब मेरे को मतलब उस मूवी में प्रॉपर्ली दिखाया था कि इसके रिवर्स कॉन्सिक्वेंसेस भी क्या हो सकते हैं. अभी हम बात कर रहे थे चैट जीपीटी की. तो क्या कभी कभार आपको स्केरी भी लगता है, बिकॉज चैट जीपीटी तो बहुत पावरफुल है, मतलब पीपल कैन यूज इट इन देयर इंटरव्यूज एज वेल. सो नाउ डू यू फील दैट इट इज वेरी इजी टू फेक व्हाट यू आर नॉट? या एब्सोल्युटली. मतलब मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ, मैंने भी फेक करने का आइडिया दिया था ना. आई जस्ट आस्क्ड समवन टू स्टार्ट अ ब्लॉग, राइट? एंड राइट नथिंग अबाउट इट, राइट? यू नो शिट अबाउट इट. आपको कुछ नहीं पता उस बारे में, लाइक बड़ा फिर भी ज्ञान लिख रहे हो उसके बारे में, ज्ञान लिख रहे हो. सो जो लोग देख रहे हैं उनको तो लग रहा है बहुत ज्ञानी हो, बट आप हो नहीं, आप तो AI से कर रहे हो. So whole point is this only, and I've seen people doing that. I've seen people using AI in their college assignments, and the professor would say कि यार क्या बात है, तूने तो धुएं उठा दी. I've seen people do that. So this is a consequence. Moving forward, I would also like to include that this is scary. This shit is scary, very scary. It kills a lot of jobs. Let's say कि मेरे को फिबोनाची सीरीज का कोड लिखना है, मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में हूँ या फिर मैं 12th में हूँ, मेरे को कॉलेज का असाइनमेंट करना है, मैं क्यों लिखूंगा? मतलब अगर कॉलेज असाइनमेंट था, ठीक है, या फिर वो था, तो इट वाज गिवन फॉर अ रीजन, राइट? इट वाज गिवन फॉर अ रीजन. अभी पहले क्या हो रहा था कि आप पहले उस कॉलेज असाइनमेंट को प्लान करोगे अपने दोस्तों के साथ मिलके कि हाँ ऐसे करते हैं यार, ऐसे करते हैं, उससे फाइल मांगोगे कि हम तो फाइल मांगते थे, मतलब अब तो नहीं हो गए, सिस्टम ही खत्म हो गया. अब क्यों लिखोगे? देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग अ रिसर्च. और मान लो कि आप रिसर्च कर रहे हो किस टॉपिक पे, लेट्स से आप गूगल पे जाकर रिसर्च कर रहे थे, मान लो आपको टॉपिक दिया गूगल क्लास वो उसमें कॉलेज में कि यार लिख के लाओ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कैसे काम करते हैं. आप गए, जो मैम ने टॉपिक दिया, सर ने टॉपिक दिया, आपने जाके एग्जैक्ट लिख दिया, आपको आंसर मिल गया, आपने असाइनमेंट देके दे दिया, ठीक है. बट पहले क्या था, आप गूगल पे आते थे, रिसर्च करते थे, आप एक चीज ढूंढ रहे थे, आपको 10 चीज और मिल रही थी जो कि नहीं दिख रही थी, बट आपको मजे आ रहे थे कि यार ये भी पढ़ लेता हूँ ना, अच्छा लग रहा है ना, देखने में अच्छा लग रहा है, फोटो अच्छी है. बट अब ऐसा नहीं हो रहा, राइट? अब तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, राइट? सो दिस इज अ वेरी बैड थिंग.
like it invokes it less human creativity in this. It makes our minds lazier. ठीक है, the people who are smart will do it eventually, right? The people who understand the tech will do it. Like I'll do it क्यों, मेरे को पता है कि it's making my life easy, right? But people who are like destroying it or using it for their own purposes बहुत ज्यादा उनके दिमाग की क्रिएटिविटी खत्म हो रही है. ठीक है, खत्म नहीं हो रही, एटलीस्ट लिमिटेड हो रही है. दिस इज व्हाट आई फील. ठीक है, बट इट हैज अ लॉट ऑफ बैड influences. It kills a lot of startups. So you are building Crux, an AI based startup. What's the journey like? Hard. Very hard, I should say. So one thing, I started out Crux with some other people, and now it's entirely new set of people, right? It's hard, very hard. People glamorize this startup a lot, but trust me, it's very hard. Like for a founder, it's like raising a baby. Harder than raising a baby, actually. Like it's a lot of shit. People don't take you seriously. Number one, like people leave you now and then. People don't believe you what you say unless they see something very promising. It was same for me. So Crux has been there for around 2 years, and we have pivoted 3 times. 3 बार तो चेंज कर लिया. ठीक है, कि क्या करना है, कैसे करना है. We started off with providing summaries, कि हम क्या करेंगे, समरी करेंगे लोगों के लिए. ठीक है, 2 साल पहले समरी लोगों के लिए समरी करेंगे. हमें समझ नहीं आया कौन खरीदेगा, समझ नहीं आया. 3rd ईयर में तो समझ नहीं आया. तो उसके बाद हमने कहा कि भाई हम क्या करेंगे, इन शॉर्ट्स है ना, वैसा करेंगे कि लोगों को ना एक्साइटिंग आर्टिकल्स की समरी देंगे. जी बना लिया, 6 महीने लगा के, साल लगा के वो बना लिया. अब पॉइंट क्या है कि लोग कोई पैसा नहीं दे रहा उसके लिए. अब पैसा कौन देगा आर्टिकल पढ़ने के लिए? मैं तो नहीं दे रहा, तो कोई भी नहीं दे रहा था. नाउ वी थॉट कि लोगों को तो मैंगो शेक चाहिए, हम आम दे रहे हैं. ठीक है, तो हमने क्या करा, तो एआई की जो ताकत थी, हमने कहा कि हम समराइज करके दे रहे थे ना, अब हम समराइज करने की क्षमता आपको दे रहे हैं. अब आप समराइज कर लो, आपको जो समराइज करना है, हम आपको बताएंगे नहीं, आप खुद कर लो समराइज. फिर हमें पता लगा कि भैया इसकी तो बिजनेस को यूज है. एग्जाम्पल के लिए बिजनेस को कैसे यूज है, कि टाइम्स ऑफ इंडिया है. अब टाइम्स ऑफ इंडिया एक दिन में 50 आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे डालता है. ठीक है, सो अब टाइम्स ऑफ इंडिया क्या करता है, उन 50 आर्टिकलों को ना अपने सोशल मीडिया पे भी डालता है. अगर आपने कभी देखा हो, ट्विटर पे डाल देता है, इंस्टाग्राम पे डाल देता है. तो डालता कैसे है? अब ट्विटर पे 500 वर्ड का आर्टिकल तो नहीं डाल सकता, या फिर इंस्टाग्राम पे 500 वर्ड का कैप्शन तो नहीं लिख सकता. तो टाइम्स ऑफ इंडिया के पास एक टीम है, वो क्या करती है, वो 5 लोगों की टीम है, वो उनको ना वो आर्टिकल को समराइज करते हैं 50 वर्ड में, 100 वर्ड में समराइज करके वहां डालते हैं. तो हमें लगा कि भैया ये तो है जरूरत हमारी. अब हमने क्या इनको कहा कि भैया आप क्या करो कि आप ना अपने आर्टिकल का लिंक हमें दे दो बस, और आप चूज कर लो आपको कितने वर्ड में समरी चाहिए. हम एआई की मदद से आपको समरी करके दे देंगे. आपका काम बच गया, आपको करना है दिन में 50 बार, आपका काम बच गया, हमारा काम बन गया. ठीक है, फायदा. बट यहाँ पे गलती है. ठीक है, गलती क्या है कि अब लोग नहीं समझते, ये मेरे को समझ आया. तो मतलब मैंने क्या करा कि मैंने बहुत मेहनत करके ना लिंक्डइन पे लोगों को मैसेज करा दबा कि सर ऐसा है. बहुत बड़ी आई वाज अप्रोचिंग दीज फॉर्ब्स लेवल का ऑर्गेनाइजेशंस कि यार आई नो दैट माय प्रोडक्ट इज फॉर B2B. आई वाज अप्रोचिंग देम. सो आई वाज अप्रोचिंग देम, आई रियलाइज्ड अ प्रॉब्लम. ठीक है, आई वाज लकी इनफ टू ब्रिंग टाइम्स ऑफ इंडिया के 6 सीनियर लेवल के एडिटर, मतलब जो इंडिया को कंट्रोल करते हैं ना, ऐसे एडिटर जो इंडिया के लिए न्यूज लिखते हैं रोज, उनको मैं एक कॉल पे ले आया, गूगल मीट पे ले आया, मैं रो पिट के उनको ले आया कॉल पे. अब उन्होंने कहा कि चलो डेमो दे दो. ठीक है, उन्होंने चैट में एक आर्टिकल भेजा मुझे कि ये आर्टिकल है, इसको कर दो समराइज हमारे सामने. स्क्रीन शेयर थी, तो मैंने कर दिया और वो हो गया. अब उसमें हुआ क्या, एआई ने लास्ट वर्ड खा लिया. जैसे इन द वर्ल्ड था तो इन द लिख दिया और वर्ल्ड नहीं आया. ठीक है, इट्स अ रैंडम सॉफ्टवेयर, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, राइट? मैंने तो बना दिया ना, मुझे पता नहीं है कि क्या होगा. सो होल पॉइंट वाज व्हाट टू डू. ठीक है, अब आई एम शिट स्केयर्ड बिकॉज़ देयर आर 6 एडिटर्स 60 इयर्स ऑफ एज, 60 साल के हैं, मैं 22 साल का हूं, तुम ले आओगे. तो दे सेड कि यार प्रोडक्ट इज गुड, ठीक है, बट वी कैन नॉट डिपेंड ऑन इट. ऐसा क्यों? जब वो जो 5 लोगों की टीम है, जब वो एक पूरे आर्टिकल को समराइज करती है, वो 5 लोगों की टीम ना, वो एक्सपर्ट है. एक्सपर्ट है का मतलब उनको पता है कि लोगों को क्या पढ़ना है. दे अंडरस्टैंड ह्यूमन माइंड्स बेटर. बट योर सॉफ्टवेयर, दो इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम, ठीक है, बट वी कैन नॉट डिपेंड ऑन इट. वी कैन नॉट रिलाई ऑन अ मशीन टू डू इट, राइट? सो इट्स हार्ड.
इवन दो, अच्छा मैंने मेरा तर्क आगे से ये था कि सर हम ना आपकी मदद कर रहे हैं, आपको पढ़ना तो पड़ेगा बट आपको पूरा समराइज नहीं करना पड़ेगा। तो कह रहे बेटा हमारा फायदा क्या होगा फिर, अब हमें पढ़ना ही है तो तुम खुद ना लिख लें। सो मैं आपको बड़े प्यार से बोल रहा हूँ बट उन्होंने मेरे को प्यार से नहीं बोला था ठीक है, दे स्कोल्डेड मी, दे डोंट, भाई टाइम से वो 60 साल के हैं, उनका मैंने टाइम ले लिया 1 घंटा। इट वाज लाइक वेरी माइंड बॉगलिंग। तो देन वी थॉट यार ये तो यहाँ पे एआई पे ट्रस्ट का इशू है कि एआई पे ट्रस्ट नहीं कर सकते लोग, ठीक है, तो यहाँ ट्रस्ट का इशू। तो वी थॉट व्हाई नॉट डू इट समथिंग लेस सीरियस। ऐसा इसलिए ना, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो जिस सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं, न्यूज, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया मतलब न्यूज। अब न्यूज बहुत सेंसिटिव है। एक आर्टिकल से उसमें लिखा है कि ट्विटर वाज नॉट डूइंग दिस एंड उसने नॉट खा लिया यानी, और ट्विटर वाज डूइंग दिस हो जाएगा, ठीक है। इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ इट। तो आई थॉट if we have to use this, we have to use it in a less serious things, जहां पे हम जो हमारा एरर रेट है वो हो सकता है ज्यादा, मतलब अगर गलती भी हो गई तो गलती का स्कोप है, ऐसा ना हो कि भाई थप्पड़ पड़े। इट वाज लाइक दिस।